ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد کرناٹک میں شیعہ مسلمانوں کے مرکز علی پور میں ماتم منایا جا رہا ہے۔ پورا علی پور ماتم کدا ہے، غم میں مبتلا ہے، دکھ اور درد میں مبتلا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں علی پور جو بنگلور سے تقریباً 70 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے، یہاں پر اس وقت مجلس جاری ہے، مجلس برپا کی گئی ہے، تعزیتی اجلاس یہاں پر جاری ہے اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر انتہائی درد، دکھ، رنج و الم کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس شہادت کو پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا دھکا، ایک بڑا صدمہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آیت اللہ خامنائی نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پورے مظلوموں کی حمایت کرنے والے ایک ایسے عظیم رہنما تھے جو آج محروم ہو گئے۔ اسرائیل اور امریکہ کی کارروائی کی سخت مذمت کرتے ہوئے، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرہ بلند کرتے ہوئے آج علی پور میں ایک عظیم الشان تعزیتی اجلاس یہاں پر ہو رہا ہے۔ شاہ ابرار ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں میر علی عباس انجمن جعفریہ جو سپریم باڈی علی پور کی ہے، گوری بنر تعلق چکبڑا پور ڈسٹرکٹ کرناٹکا اسٹیٹ سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ جو آج مظلومانہ شہادت جو دھوکے سے امریکہ اور اسرائیل نجیس جیسے گورنمنٹ نے جو اینٹی ٹیررزم، جو ٹیررسٹ ہے اور اینٹی انسانیت ہے، اور جو آج مظلومانہ شہادت جو دھوکے سے ہمارے رہبر معظم انسانیت کے رہبر جو اسلامک لیڈر ریولیوشن جو سید علی خامنہ صاحب کی شہادت پر آج ہم تمام مسلمانات کے خدمت اقدس میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور یہ میسیج دینا چاہتے ہیں انڈین گورنمنٹ کو، وہ مذمت کرے اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں جو نجس گورنمنٹ، جو جھوٹی گورنمنٹ اور جو مظلومیت کے خلاف، جو انسانیت کے خلاف جو گورنمنٹ ہے اسرائیل اور امریکہ کی، ہم دھکارا اور مرد آباد کہتے ہوئے لوگوں دنیا والوں کو میسیج دیتے ہیں۔ ان کی یہ بھول ہے کہ وہ شہادت کر کے بام ڈال کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ شہادت یہ کا رنگ خون رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ عنقریب امریکہ و اسرائیل ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید، اذا اصابتکم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقال تبارک و تعالی ایضا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج کا دن تمام عالم اسلام کے لیے غمزدہ دن ہے، بلاک ڈے ہے، سیاہ دن ہے، اس لیے کہ آج کے دن ٹیررسٹ نے اس شخصیت پر حملہ کیا ہے جو شخصیت ہر مظلوم کا ساتھ اور ظالم کے خلاف آواز بلند کر رہا تھا۔ اس کی زندہ مثال جہاں جہاں بھی ظلم ہوا ہے، جس جگہ بھی ظلم ہوا ہے، چاہے وہ افریقہ میں ظلم ہوا ہو، چاہے وہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ سیریا میں ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ یمن میں ظلم ہو رہا ہو، ہر جگہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے، جو مظلوم کی آواز بند کر کے مظلوم کے ہاتھ پہ سر رکھنے والے کو آج ایک انسانیت کا، ہدایت کا بہت بڑا انسان جو تھا، جس کو امریکہ اور اسرائیل نے، ٹیررسٹ نے جس کو آج
शहीद कर दिया। आज हम दुनिया वालों को ये मैसेज देते हैं कि दुनिया वालों, ए जालिमों, ए नादानों, तुम चाह रहे हो एक खामनाई को शहीद करके तुमने क्या पूरे शियत को ख़त्म कर दिया, पूरे इस्लाम को ख़त्म कर दिया, पूरे मुस्लिमीन को ख़त्म कर दिया, पूरे इंसानियत को ख़त्म कर दिया। याद रखो, इंसानियत की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए, तौहीद की बका के लिए, कुरान की बका के लिए मजलूमों के हामी बन करके ऐसे हजार खामनाई भी फिदा हो सकते हैं, कुर्बानी पेश कर सकते हैं। और दुनिया ये चाहती है कि हम इनको ख़त्म कर देंगे तो शियत ख़त्म हो गई। जब यजीद इमाम हुसैन को शहीद करके हमको नहीं ख़त्म कर सका तो उसके ये फॉलोवर्स, उसको मानने वाले हमें क्या ख़त्म कर सकते हैं। दुनिया को यही मैसेज है कि हक बाकी रहेगा, बातिल को मिटना होगा। जा अल हक, जब हक जाहिर होता है बातिल खुद ब खुद मिट जाता है, फना हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हम जो है दुनिया वालों को ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। दुनिया में जो इंसानियत पाई जाती है, जिसके दिल में भी इंसान का दर्द होता है, उस इंसान की खिदमत में आज वो तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं। मेरा नाम मौलाना दिलावर हुसैन, प्रेसिडेंट अलबलाग फाउंडेशन अलीपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। सबसे पहले हम आज सारे आलम इस्लाम बल्कि आलम इंसानियत को तस्लियत पेश करते हैं, क्योंकि ये कोई वलो रहबर मुअज़्ज़म शिया थे, लेकिन कभी भी उन्होंने जब भी मज़लूम की मदद की तो उसका मजहब नहीं देखा, बस ये देखा कि कहाँ पर जुल्म हो रहा है। जहाँ पर जुल्म होते हुए देखा, फ़ौरन बग़ैर किसी मजहब को जाने हुए रहबर मुअज़्ज़म ने उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। वो रहबर कि जो सारी अपनी पूरी ज़िंदगी मज़लूमीन की हिमायत के लिए और ज़ालिमीन से लड़ने में जिसने पूरी अपनी ज़िंदगी बसर कर दी, आज उसकी शहादत पर हम पूरे वतन में, पूरे अलीपुर में शोक का ऐलान करते हुए पूरे अलीपुर में गम मना रहे हैं। और ये सिर्फ अलीपुर का गम नहीं है, ये सिर्फ हमारे मुल्क का गम नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत आज यतीम हुई है। आज पूरे मजलूमीन, आज गज़ा के मजलूमीन यतीम हुए हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर गम मनाने के लिए आए हैं। और ऐसे मौके पर कि जब दोबारा बातचीत, जब भी ईरान के लिए बातचीत का पैगाम भेजा गया, ईरान ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया, हमेशा बातचीत की हिमायत की और बातचीत के लिए आगे बढ़ी। और इस वक्त भी जो पहली मर्तबा जिस तरीके से हमला हुआ था बातचीत के दरमियान, डायलॉग के दरमियान, इस मर्तबा भी धोखे से जब बातचीत राजी होके बातचीत शुरू की गई थी, ऐसे मौके पर धोखे से हमला किया गया। हम इस हमले की कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पूरे हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तानी हुकूमत से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि ये इस घटना की, इस जो हादसे की कड़े अल्फाज में वो मजम्मत करे। वस्सलाम। मुस्लिमा का अजीम रहनुमा, उम्मत मुस्लिमा का अजीम रहनुमा और कायद आज दुनिया में नहीं रहा। वो जो उम्मत का शान था, मजलूम फ़िलिस्तीनियों का हामी था और एक जहती इत्तेहाद व इत्तेफाक का नारा बुलंद करने वाला था, आज दुनिया में नहीं रहा। आज सिर्फ दुनिया वालों के लिए सिर्फ एक ही पैगाम हम दे सकते हैं कि आज भी उम्मत मुस्लिमा में ऐसे निडर और शेर और बहादुर रहनुमा पाए गए कि जिन्होंने तस्लीम को कबूल नहीं किया, जिल्लत को कबूल नहीं किया, आखिरी लम्हे तक उन्होंने दुनिया वालों को, इस्तिकबारी और इस्तेमारी ताकतों को ये पैगाम दे दिया कि सर कटाना मंजूर है, सर झुकाना मंजूर नहीं है। आज सारे इंसानियत के लिए, सारे मजलूमों के लिए, आज सारे मुसलमानों के लिए ये शहादत बाइस फ़ख्र है। शहादत के ज़रिए से निकलने वाला एक कतरा खून भी रायगा नहीं जाता और एक इनकलाब बर्पा करता है। उम्मीद है कि इस अजीम रहबर जो उम्मत मुस्लिमा का कायद था, इसका खून रायगा नहीं जाएगा। इसके खून के बरकत से फ़लस्तीन आज़ाद होकर रहेगा। उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद और एकजहती के साथ आगे बढ़ेगी। रहीम क़ाल मासूम अलैहिस्सलाम, हैहात मिन्न ज़िल्ला, ज़िल्लत और रसवाई हमसे कोसों दूर है। जिस अजीम रहबर, जिस अजीम लीडर, जिस अजीम मुजतहिद, जिस अजीम फ़कीह और मर्द मुजाहिद की शहादत हुई है,
उस अजीम मर्द मुजाहिद फ़कीह और इस मुजतहिद ने किसी ख़ास तबके के लिए, किसी ख़ास मसलक के लिए, किसी ख़ास दीन के लिए काम नहीं किया। इनकी हमेशा आवाज़ मजलूमों की हिमायत के लिए रही। चाहे मजलूम जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, दुनिया के किसी खत्ते से किसी खत्ते से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन इस अजीम मर्ज ने, इस अजीम सुप्रीम लीडर ने मजलूमियत की हिमायत, मजलूमों की हिमायत करते हुए ये ऐलान किया। आज ये शहादत इस बात की दलील है कि इस अजीम शख्सियत की शहादत इसराइल की लाश पे आखिरी कील होगी। अब उसके बाद इसराइल सफ़े हस्ती से मिट जाएगा और अमेरिका जिसने जंगल राज बना रखा है उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। ये वो मूसा है जो नहर नील से निकलते हुए फिरौन और उसकी फौज को नहर नील में गर्क करके रख देगा। ये जंग मामूली जंग नहीं है। और याद रखें कि इस अजीम शहीद के साथ साथ जितने भी बड़े बड़े कायदीन, रहबरान, लीडरान शहीद हुए हैं, इनका खून का एक एक कतरा अमेरिका और इसराइल के लिए सैलाब बनकर नमूदार होगा कि जिसमें ये दोनों खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अली बाकर आबिद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको खबर है, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खमेनाई रहमतुल्लाह अलैह को वक्त के यजीदों ने, वक्त के ज़ालिमों ने शहीद कर डाला। और ये तारीख़ का एक अलमिया रहा है कि जो भी हक़ की बात करता है, जो भी मज़लूमों की बात करता है, उनकी हिमायत की बात करता है, उसको दरमियान से हटा दिया जाता है ताकि ज़ालिमों को मौका मिले कि वो दुनिया को जंगल राज में तब्दील करके वो अपनी मनमानी चला सके और अपनी हुकूमत चला सके। हमारी दरख्वास्त तमाम आलम इस्लाम के इदारों से, तमाम दुनिया के इंसानी इदारों से यही है कि इस जुल्म को कंडेम करें और इस शहादत को दर हकीकत दुनिया वालों के सामने बताए। एक खामेनाई किसी मुल्क का बाशिंदा नहीं था, खामेनाई किसी एक फ़िरक़े का लीडर नहीं था, ये एक इंसानियत का लीडर और एक तमाम आलम इस्लाम के मज़लूमों का, मुस्तज़फ़ीन का हामी। तकरीबन गज़ा से लेकर यमन, यमन से लेकर सीरिया, सीरिया से लेकर लेबनान और लेबनान से लेकर दूर दराज इलाक़ों में जहाँ भी जुल्म हुआ है, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाला और मज़लूमों की हिमायत में बात करने वाला है। इसको कंडेम करें। हमारा मुल्क जो हमेशा मज़लूमों की हमदर्दी की बात करता है और हमारे मुल्क हमेशा शिकवा करता है कि उस पर दहशतगर्दी की गई है, तो ये अच्छा मौका है कि इस अजीम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बोले और मज़लूमों की हिमायत का ऐलान करे। मज़लूमों की हिमायत ही में मुल्क की तरक्की है और मज़लूमों की हिमायत ही में हमारी सबकी नजात है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क भी उसी रास्ते पर चलेगा जिसे हमारे मुल्क के पुराने लीडर्स चलते रहे और हिंदुस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद अदील रज़ा आबिदी। तारीख़ इंसानियत गवाह है कि हर दौर में अहले बातिल ने धोखे से शहादतें दी हैं और अहले हक ने शहादत को कबूल किया है। इसी से ज़माने में इनकलाबात बर्पा हुए हैं। आज की शहादत भी किसी रुख से रायगा नहीं जाएगी, इसलिए कि रहबर इनकलाब, रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई की शहादत इस बात का पैगाम दे रही है कि आने वाले दिनों में बातिल का खात्मा हो जाएगा और हक का परचम बुलंद रहेगा। कारवां उजालों के राह में नहीं रुकते, कारवां उजालों के राह में नहीं रुकते। एक चिराग बुझता है, 100 चिराग जलते हैं और ये कारवां रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बहुत पहले का जो है 4 मिसरे जो है मुशायरों में पढ़े थे, वो ये कि हक का राही कभी बातिल से नहीं डर सकता, हक का राही कभी बातिल से नहीं डर सकता। जाहिरन मर भी गया फिर भी नहीं मर सकता, जाहिरन मर भी गया फिर भी नहीं मर सकता। जुल्म इंसान पे हो
तख्त पर जालिम भी रहे, सच्चा रहबर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही हुआ कि आज एक सच्चे रहबर ने जालिम की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया और अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल हक का सूरज फिर तुलू होगा और हम लोग सुरखरू होंगे।